Okay, today we'll start with types of reagent. Types of reagent. Now, types of reagent means what? Suppose, for example, we write the reaction methyl bromide react with KOH. Now, in this case, OH goes and replace the Br. So, what we get here? Methyl alcohol, and we get KBr. For example, CH3Br is called as CH3 is called as methyl, Br is called as bromide, and this is potassium hydroxide. So we are having methyl bromide. To that we are adding potassium hydroxide. Now this potassium hydroxide, see, this is a main reactant. This is a main reactant, and main reactant are called as a substrate. This is a methyl bromide is a main reactant, and main reactant is called as a substrate. Whatever is added to the substrate are called as a reagent. Whatever is added to the substance, KOH is added to methyl bromide. KOH is added to the substrate. So whatever is added to the substrate are called as a reagent. And reagent can be of two types: electrophiles and nucleophile. So basically, what are the two terms we should know? जो हमारा मेन रिएक्टेंट है, हमारा जो मेन रिएक्टेंट है, the main reactant is called as the substrate, and whatever we add into it can be called as a reagent. And reagent can be of two types: they can be electrophile or they can be nucleophile. So what is reagent? So I have written here, the organic reactions are brought about by two types of reagent. मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग दो टाइप के रिएजेंट ऐड करते हैं. कैसे? डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट और टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट. मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स from substrate, and nucleophile will donate electron to substrate. See, electrophile will accept electron from substrate and nucleophile will donate electron to the substrate. मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन देगा. मतलब देखो, अगेन आई रिपीट, जो हमारा मेन रिएक्टेंट है उसे बोलना है सबस्ट्रेट. उसके अंदर जो भी आप ऐड करोगे, एडेड सब्सटेंस को क्या बोलना है? एडेड सब्सटेंस. Added substance can be called as what? Reagent. Added substance can be called as a reagent. Reagent दो types के, कैसे? Electrophiles and nucleophile. Electrophile क्या करेंगे? They will accept electron from substrate. सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे. और nucleophile क्या करेंगे? Will donate. They will donate electron to the substrate. So basically अभी हमें दो types के reagent के बारे में स्टडी करना है. इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में स्टडी करना है एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में स्टडी करना है.
first we'll see about the electrophiles. 1 minute, I'll turn the page. What is electrophile? What is electrophile? Electrophile means what? Electrophile means they are electron loving. Electron loving means what? They always accept electron from the substrate. Always remember, electrophile means electron loving. Electrophiles means electron loving. And why electron loving? Because they're electron loving, they will always accept electron from the substrate. And because they're accepting the electron, that means we can say they are electron deficient. See, all the three sentences are related to each other. The first, electrophile, means they are electron loving. Okay, they want electron. Because they want the electron, they are accepting the electron. They are accepting the electron from the substrate. And they are accepting the electron, that means they are electron deficient. Correct? तो electrophiles के बारे में. So whenever we talk about electrophiles, so आपको मालूम होना चाहिए what is electrophile? They accept electron from the substrate. And why they accept electron from the substrate? Because they are electron deficient. What are the example? A positively charged ion, a positively charged ion such that Br plus, or a neutral species having vacant orbital such as the vacant orbital मतलब कैसे देखो, for example AlCl3. Now see here, aluminum is surrounded by how many bond? 3 bond. 1 bond, 2 electron, 1 bond, 2 electron, and 1 more bond, 2 electron. So aluminum Al is surrounded by 6 electron. Al is surrounded by how many electron? 6 electron. देखो Al के बाजू में कितने bonds है? 3 bonds है. 1 bond मतलब 2 electron. ये 1 more bond मतलब 2 electron और एक 1 more bond. So how many? 2 plus 2 4 plus 2 6. So aluminum is surrounded by 6 electron. Therefore aluminum is electron deficient, and therefore it accepts a pair of electron. मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है. तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक्सेप्ट करेगा. सो इट इज एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. Aluminium is surrounded by 6 electron, and therefore aluminium is electron deficient because 6 है तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे. So therefore it accepts a pair of electron. तो ये हमने किसके बारे में देखा? इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में देखा. इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब they are electron loving. Because they want electron, they accept electron. Because they are accepting electron, that means they are electron deficient. And which example? Mostly all positively charged ions and all neutral species having vacant orbitals such as AlCl3, that is Al in AlCl3. Al in AlCl3. Aluminium जो हमारा यहाँ पे है, this aluminium is surrounded by how many electrons? 6 electron. So aluminium is electron deficient. So it accepts pair of electron. और 2 electron, pair मतलब 2 electron. और 2 electron अगर ले लेगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. 6 plus 2 8. 6 है प्लस अ पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. 6 plus 2 कितना हो जाएगा? 8. और ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा.
What is nucleophile? Nucleophile means what? Nucleophile means nucleus loving. They are nucleus loving. Nucleus loving means what? They have attraction for nucleus. And because they are nucleus loving, they give electron to the substrate. The electron donate करेंगे. So they give away electron to the substrate. Correct? They are electron there है मतलब they are electron rich. Okay, so what is nucleophile? Nucleophile means they are nucleus loving. Nucleus loving means what? They give away electron. They give away electron to the substrate, and they are giving away electron. That means they are electron rich. And examples are what? Mostly all negatively charged species. All negatively charged species such as OH minus or many other. All negatively charged species OH minus or neutral species with having water like lone. I'll explain water, how it's water. Water, the hydrogen atomic number is 1. Hydrogen atomic number is 1. Electronic configuration is 1. Oxygen atomic number is 8. Electronic configuration is 2, 6. Hydrogen atomic number is 1. Electronic oxygen atomic number is 8. Electronic configuration is what? 2, 6. So if I just write water formula O, H, H. O has how many valence electron? O has 6 valence electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxygen atomic number is 8 and oxygen has 6 valence electron. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6. और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन 1 और इसका इलेक्ट्रॉन 1. अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करेगा अपना? हाइड्रोजन विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. ये भी हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करेगा? ड्यूप्लेट. कैसे कंप्लीट करेगा? देखो, खुद का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा. हाइड्रोजन अपना कंप्लीट करेगा डुप्लेट. हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी अपना कंप्लीट करेगा डुप्लेट. और ऑक्सीजन अपना कंप्लीट करेगा ऑक्टेट. ऑक्सीजन कंप्लीट करेगा ऑक्टेट. कैसे करेगा ऑक्टेट कंप्लीट? देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ से एक लेगा तो 7 और यहाँ से एक लेगा तो 8. तो ऑक्सीजन भी अपना कंप्लीट करेगा ऑक्टेट. तो ऑक्सीजन हैज गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो कंप्लीट. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6, 2 are forming the bond with hydrogen atom. Out of 6, 2 are. तो ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है. तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर. इसे क्या बोलेंगे? लोन पेयर. और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा और एक पेयर है इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर. तो जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं है. देखो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं है. ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी के साथ शेयर नहीं है. तो जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी शेयर नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर. वी ऑल्सो कॉल देम एज अ लोन पेयर. और ये लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है. ये लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है. इसीलिए ऑक्सीजन को क्या बोलना है हमें? न्यूक्लियोफाइल बोलना है. क्या बोलना है? न्यूक्लियोफाइल. सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? मींस न्यूक्लियस लविंग. Nucleus loving, so they give away electron to the substrate. They will give away electron to the substrate. They are giving away the electron to the substrate. That means the electron reach. And what are the example? All negatively charged species such as OH minus और न्यूट्रल स्पीसीज सच एज व्हाट? वाटर. वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए वाटर को उन्होंने क्या बोला? न्यूट्रल स्पीसीज. वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. और वाटर के में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? लोन पेयर है. जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं होते उनसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं. वी कॉल देम एज अ लोन पेयर. और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेगा. तो हम ये हमारा एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल का. अभी OH माइनस कैसे आएगा? देखो OH माइनस कैसे आएगा? देखो H
सिंगल बॉन्ड OH, H सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड है। वन सिंगल बॉन्ड मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो OH क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और H का इलेक्ट्रॉन भी लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा, H का इलेक्ट्रॉन भी लेगा। तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, H प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, इसलिए OH क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके लिए ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। करेक्ट। तो देखो क्या था यहाँ पे, H और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो O ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और H का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो O के पास एक्स्ट्रा पेयर आ गया। एक्स्ट्रा पेयर मतलब पेयर वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसलिए OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। और H ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो H इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो H प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और ये क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। सो इन शॉर्ट, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलना है, इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे क्या बोलना है, न्यूक्लियोफाइल। रिपीट अगेन, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलना है, इलेक्ट्रोफाइल बोलना है। ये मतलब अगर इसे इलेक्ट्रॉन किसी न किसी के पास से एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे OH में O इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। So those species which have a tendency to accept electron pair are called as electrophile, and those who have a tendency to donate electron pair are called as a nucleophile. Okay. So we have finished with the electrophiles and nucleophile. We'll go for the next heading. When what is now next heading is what, inductive effect. Now what is inductive effect? When organic molecule, I'll take one example first. Suppose you got here, the example is CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl. Now in this example we know that Cl is more electronegative atom than carbon. Okay. What is electronegative atom? जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इन यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है। मैं और क्लियर करता हूँ, ऐसे लिखूंगा CH3 CH2Cl। यहाँ पे और क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। बट कार्बन और क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब क्लोरीन का, देखो यहाँ पे भी एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, करेक्ट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टाइम आएगा तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, क्लोरीन। मतलब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा प्लस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन विल हैव द partial negative charge and carbon will have the partial positive charge. क्लोरीन विल हैव, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, क्लोरीन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आ रहा है, क्लोरीन की तरफ आ रहा है, तो क्लोरीन विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट। क्लोरीन विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा जो बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड कैसा बन रहा है, पोलर। पोलर क्यों, टू अपोजिट
polarity on neighboring atom. ये देखो ये CCl में ये एंड हमारा निगेटिवली चार्ज है और ये एंड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो दो अपोजिट एंड, दो अपोजिट पोल है, तो ये हमारा CCl बॉन्ड पोलर बना। यहाँ पे अगले रिपीट क्या किया था, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लोरीन में, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए क्या हुआ, क्लोरीन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो उसके कारण ये बॉन्ड हमारा क्या बन रहा है, पोलर बन, ये बॉन्ड हमारा पोलर बना, करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, दोनों एटम सेम है, दोनों एटम सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, इक्वली शेयर रहेगा, तो मतलब ओरिजिनली ये हमारा जो बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर है, ये हमारा बॉन्ड नॉन पोलर, मतलब यहाँ पे ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा रहेगा, इक्वली शेयर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर रहेगा, तो ये हमारा नॉन पोलर है। लेकिन अभी क्या हुआ, क्लोरीन ने किससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, कार्बन से, तो ये कार्बन जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन एटम कहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, सेकंड कार्बन से, मतलब इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कार्बन वन, तो इसके कारण इसके ऊपर भी क्या चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा, पॉजिटिव। देखो क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन कार्बन से, इसके कारण ये बॉन्ड हमारा कैसे बना, पोलर बना। ये हमारा ओरिजिनली बॉन्ड कैसे था, नॉन पोलर था, लेकिन क्लोरीन ने कार्बन से वन से इलेक्ट्रॉन लिया, फिर कार्बन वन ने कार्बन टू से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन टू में भी क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो कार्बन टू में भी चार्ज आ गया, मतलब कार्बन टू भी कैसा बना, अभी पोलर बना, जो पहले नॉन पोलर था अभी कैसे बन गया, पोलर बन गया, मतलब यहाँ पे भी पोलैरिटी आ गया, तो एक पोलर बॉन्ड दूसरे में पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, एक पोलर बॉन्ड दूसरे में पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, that effect is called as what, inductive effect, it is called as the inductive effect. What is inductive effect, when organic molecule has a polar covalent bond, ये polar covalent bond है, when organic molecule has a polar covalent bond in its structure, then polarity is induced in the adjacent carbon carbon single bond, तो ये बॉन्ड हमारा पोलर है, लेकिन ये पोलर बॉन्ड बाजू के नेबरिंग के कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलैरिटी क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा पोलर बॉन्ड नेबरिंग कार्बन कार्बन में पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो वापस अगेन, व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, when organic molecule has a polar covalent bond in structure, then polarity is induced in the adjacent carbon carbon single bond 2, polarity is induced in the adjacent carbon carbon single bond 2, this is called as the inductive effect। तो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, ये हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर था, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर था, कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर था, ओरिजिनली नॉन पोलर था, लेकिन ये बॉन्ड ने इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दिया, तो ये कैसे बना, अभी पोलर बना, ये पोलर बॉन्ड ने इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दिया, तो ये कैसे बना, पोलर बना, तो मेकिंग वन नॉन पोलर बॉन्ड इनटू पोलर by using a polar bond is called as a inductive effect, is called as the inductive effect। एक बार वापस देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड था, और ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नेबरिंग में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अंदर क्या कर रहा है, पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई द इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय व्हाट, एरो, यहाँ पे एरो है, और एरो हेड का क्या बता रहा है, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, द एरो हेड shows the direction in which electrons are moving, so inductive effect is shown by placing an arrow at the
center of the bond. Inductive effect is shown by placing an arrow at the center of the bond, and the direction, the head of the arrow shows directions in which electrons are moving. See here, inductive effect is shown by what? Placing an arrow at the center of the bond. बॉन्ड के सेंटर में क्या रखना है? एरो रखना है. ओके, और एरो का हेड क्या बताएगा? इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम कार्बन 1 टू क्लोरीन. Electrons are moving from carbon 2 to carbon 1. So inductive effect is shown by placing an arrow at the center of the bond, and the head of the arrow shows the direction in which electrons are moving. Correct? I'll take another one more example. Suppose we take the example of CH3. Now see here, in this case, this is a chlorine. Again, I'll say chlorine is more electronegative than कार्बन. देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब ये नॉन पोलर है. ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, नॉन पोलर है. और ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, नॉन पोलर. खाली यही एक बॉन्ड पोलर है, मतलब यहाँ पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. लेकिन इसे हम लोग बोले डेल्टा वन. तो अभी इसका मतलब क्या हो रहा है? ये क्लोरीन क्लोरीन किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? कार्बन से. तो ये बॉन्ड बना पोलर. लेकिन ये पोलर बॉन्ड होने के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन 1 से, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन 2 से. तो यहाँ पे भी आएगा चार्ज +2 और इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कार्बन. कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन 3 से. ये हमारा कार्बन 3 है. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहा है और ये हमारा कार्बन 3, और कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन 4 से. तो ये हमारा बनेगा डेल्टा 4. तो इसका मतलब ये बॉन्ड हमारा पोलर था, लेकिन इस पोलर बॉन्ड ने अपोजिट बॉन्ड में भी क्या इंड्यूस कर दिया? पोलैरिटी इंड्यूस कर दिया. इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट. मतलब पोलर बॉन्ड इंड्यूसेस, इंड्यूस इंड्यूस मतलब जो नॉन पोलर था उसको पोलर बना. द पोलर बॉन्ड इंड्यूसेस the polarity in the neighboring carbon carbon bond. Polar bond induces the polarity in the neighboring carbon carbon bond are called as a inductive effect. Next point I'll write here. Inductive effect is transmitted along the carbon single bond. Inductive effect is transmitted along the carbon single bond, but it is effective only up to 4 carbon atoms.
अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन 1 से, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन 2 से, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन 3 से, और कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन 4 से. सो व्हाट आई कैन से, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड अलोंग द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बट कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा, इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू 4 कार्बन एटम. मतलब ये हमें कहाँ तक इफेक्ट एप्लीकेबल, ओनली अप टू, मतलब फर्स्ट कार्बन एटम, ए सेकेंड कार्बन एटम, ए थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ, उसके आगे इफेक्ट नहीं रहेगा, उसके आगे इफेक्ट नहीं रहेगा. तो ये हमारा इफेक्ट जो है एप्लीकेबल कहाँ तक है, द इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 4 कार्बन एटम. द इफेक्ट of the inductive effect, the effect of inductive effect is applicable only up to how many carbon, 4 carbon atom. Next, there are two types of inductive effect. There are two types of inductive effect: negative inductive effect and positive effect. There are two types of the inductive effect. One is a positive negative inductive effect, and other one is a positive inductive effect. Now, what is negative inductive effect? Negative inductive effect. Now, what is the meaning of negative inductive? The more electronegative atom. Now, what is negative inductive effect? And let's write this way. Negative inductive effect. What is negative inductive effect? The more electronegative atom, the more, what is electronegative atom? The atom which attract electron toward itself. The atom which attract electron toward itself are called as the electronegative atom. The more electronegative atom or the group which pulls the bonding electron is said to be negative inductive effect. The more electronegative atom or the group which pulls the bonding electron is said to be what? Negative inductive effect. And group which shows the negative effect are what? Negative inductive effect, which one? F, Cl, Br, I, NO2, Cn, COOH and CO. They show the negative inductive effect. Means what I'll explain here. Like suppose for example we are having here CH3 CH2F. Then what happen? F will pull the electron from carbon, and carbon will pull the electron from the neighboring carbon. So this is called as a which effect? Negative. This is called as a negative inductive effect. It is called as a negative inductive effect. Suppose for example this is CH3 CH2 COOH. COOH is a carboxyl group. कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ से लेगा? इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 से. कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? कार्बन 2 से. तो ये भी कौन सा हुआ हमारा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. So what is negative inductive effect? The electronegative atom or the group which pull the electron, which pulls the bonding electron toward themselves.
the electronegative atom or the group which pulls the bonding electron towards themselves are called as a negative inductive effect. And which group will pull the electron towards themselves? F, Cl, Br, I, NO2, Cn, COH, and COR. These are the group will pull the electron towards themselves. So they will show which effect? Negative inductive effect. See, fluorine is pulling electron toward itself. So fluorine is showing which effect? Negative inductive effect. COOH is pulling electron towards itself from carbon. So it's showing which effect? Negative inductive effect. So what is negative inductive effect? The electronegative atom or the group of atom which pulls the bonding electron toward itself are called as a negative inductive effect. Okay. 6. Positive inductive effect. Positive inductive effect. The less electronegative atom which repels the bonding electrons said to have the less electronegative atom, मतलब जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, they will repels the bonding electron. मतलब bonding electron को attract नहीं करेंगे, bonding electron को क्या करेंगे? Repel करेंगे. The less electronegative atom which repels the bonding electron are said to be what? Positive inductive effect. Example of the positive inductive effect are what? Like metal, then we can say CH3, or we can say CH3, CH2. These are the positive inductive effect वाले group. मतलब this group, this metal or CH3, they will give electron to the carbon. So and that's why they are called showing which effect? Positive inductive effect. मतलब negative inductive effect में क्या रहेगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा? फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, COH कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथाइल ग्रुप. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ethyl group, and they give electron to the carbon atom. They will give electron to the carbon atom, and therefore it is called as the positive inductive effect. It is called as which effect? Positive inductive effect. Correct. So the less electronegative atom which repels the bonding electron, मतलब ये क्या करेंगे? For example अगर ऐसा रहेगा CH3, CH2 और यहाँ पे रहेगा CH3, तो ये CH3 से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कौन सा इफेक्ट आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव. ये जो CH3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कौन सा इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. करेक्ट. तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इससे भी अच्छा अगर प्रॉपर एग्जांपल लेना रहेगा तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिया बेंजीन रिंग, यहाँ पे रहेगा CH3, तो ये CH3 रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, मतलब ये कौन सा इफेक्ट होगा हमारा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. CH3 will give electron to the benzene ring, तो ये कौन सा बनेगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके. और अगर आपको एग्जांपल नहीं लिखना है तो एग्जांपल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. जस्ट खाली ध्यान में रखना कि ये हमारे ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएंगे, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. करेक्ट. जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके आएगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट.
और जो ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कौन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप देंगे, सी, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको, जो ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन बताएगा, CH3 बताएगा, CH3 CH2 बताएगा, और मेटल, दे विल शो द पॉजिटिव इंडक्टिव effect. Okay, so with this we have finished, we'll stop it over here, and we have completed the first chapter. In the next lecture we'll start with the new chapter. Okay.